नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, ट्रांसफॉर्मेशन कोच, author of Amazon bestseller Unleash the Shakti Within, creator of India Sari Challenge Facebook group, a group which we made to revisit, to take out the heritage and culture of saris जो कहीं खो सी गई थी. An entrepreneur for the last 30 years, doing my own business of renovating precious jewelry, and most important, co-founder of Devditi Foundation. देवदीति फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है सोशो कल्चरल which empowers women to empower themselves to lead completely enriched lives by participating in our numerous online and offline educational and entertaining programs which we keep having regularly. देवदीति फाउंडेशन हर वर्ग की, हर उम्र की और हर तबके की महिला का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का काम करती है. एक सशक्त और स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, फिर वे चाहे प्लेन एंड सिंपल होम मेकर्स ही क्यों ना हो, सबका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए. आज की कड़ी है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में एक और मोती पिरो रहे हैं. आज 51st सेशन है और हम हाजिर हो रहे हैं एक बहुत एस्टीम्ड स्पीकर को लेके who will add value to your lives. But before that, I invite Devditi की co-founder address you. Vandana Di. Namaskar, I'm Vandana Gupta, co-founder of Devditi Foundation, a stockbroker by profession, and I started my professional life 30 years back when I co-founded a stockbroking company and ran it successfully. Then my chance to give back to society, we co-founded Devditi Foundation with Sapna. It was a great journey for last 5 years. As Sapna told you, we are just not reviving sari culture or the culture of India. We are also sensitive to our environment. And for this, we keep having tree plantation programs and waste management programs. We also refrain the use of plastic and disposables. Other than this, we have many other verticals, and Devditi Foundation's one of the main vertical is the Devditi Humanitarian Bank. हम इसमें पहले we try to reach the lesser privilege, and for that we try and find out where the help is needed. और एक बारी वो हम identify कर लेते हैं, then we reach out to our members, our associates, to reach out to the lesser privileged with their time and resources. Recently, we have contributed for the PM Care Fund, and we are also supporting a school in Garhmukteshwar, where nowadays it is a COVID-19 shelter home. तो वहाँ की salaries के लिए भी हम थोड़ा बहुत जो हम contribute कर सकते हैं वो कर रहे हैं. और आज की एक कड़ी में जैसे सपना ने बताया कि हम women empower कर रहे हैं, आज जो हर स्त्री को, हर औरत को, हर लड़की को लगता है मैं पतली दुबली एक फिगर में आ जाऊं, ऐसे स्पीकर हमारे बीच में आए हैं. और आप पतले दुबले होने के लिए खाना बेशक छोड़ें, लेकिन दूसरों को खाना खिलाना मत छोड़िएगा. हमारे देश में क्या पूरे संसार में आज ऐसी विडंबना आई हुई है कि we need to help even not only the lesser privileged, even people from our own community, not to hate them but be by them. So over to Shikha ji, who is going to guide us कि हम अपने बॉडी की केयर कैसे करें, एक फिगर में कैसे रहें, 50 साल की उम्र में भी, 30 साल की उम्र में भी. So over to Shikha ji, please भाभी. Sachna. Yeah. Shikha ji, you will have to unmute yourself. Yes, I've done it. Yes. Hello. Yeah, I would unmute Lavina also for a second to introduce Shikha ji to us. All right, please do that. Yeah, Lavina. Hello. Before Lavina speaks, I would like to thank Lavina for it. कि ये लवीना की वजह से शिखा जी आज हमारे बीच में हैं. So Lavina, over to you to introduce Shikha ji, please. Thank you, Vandana di. Am I audible? Yeah. Thank you, Vandana di. और I am Devditi Lavina Sinha, सबको पता है, और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. और आज इस सेशन के थ्रू बहुत से लोगों में बहुत सी ग्रूमिंग हुई है, सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है इस सेशंस के थ्रू. और आज इस सेशन में मैं अपनी एक बहुत प्यारी सी दोस्त से आप सबको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जो कि
जितनी बाहर से प्यारी है वो उतनी अंदर से भी बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी इंसान है। और वो एक फेमस सेलिब्रिटी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है और उसका नाम है शिखा एस शर्मा। शिखा की लाइफ खुद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के बीच उसमें से गुजरी है। तो उसने जब अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया तो उसने वही चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए इस फिटनेस की लाइन में आई है और वो आपको खुद बहुत प्यारे प्यारे टिप्स देगी। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी। ओवर टू शिखा। थैंक यू। So, thank you so much, Lavina, for such a beautiful introduction. And thank you so much, Lavina, to introduce me on a Devditi platform. And it's so lovely, you know, hearing Sapna ji and Vandana ji, right? और सबसे अच्छा मुझे ये लगा because रोज sessions हो रहे हैं and so जैसे Devditi आया साड़ी, so I thought that what should I wear today? And thank you, I'm wearing a sari today. I'm really enjoying it, right? So बिल्कुल, so आज हम बात करेंगे हेल्थ पे, राइट? एंड जो हम देखे आज से 2 महीने पहले, राइट, हम अपनी लाइफ देखे तो हमारी जुबान पे सिर्फ एक चीज रहती थी, आई एम बिजी विद माई वर्क, आई एम बिजी अपने बिजनेस ट्रैवल को लेके, आई एम बिजी विद माई किटी, राइट, आई एम बिजी। और सडनली एक ऐसा समय आया, नाउ एवरीबडी एट होम। मैं नहीं चाहती ज्यादा टाइम तक ये समय रहे, बहुत जल्दी चला जाए, बट यस, ये समय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है और लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना और देना चाहूंगी। वेल, लवीना जैसे मेंशन किया, सो विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी, आई एम द वेल नोन renowned dietitian. I own my 17 franchises around the world from US to Dubai. I'm consulting a very renowned names like Arshi Khan from The Big Boss, Kangna Sharma, the owner of Filmfare as well, right, Roshni Walia, and given tips to Chichi Bhaiya, Govinda ji, and मेरे regular shows आते हैं from MH1Z and all that stuff. And I'm the first dietitian जिन्होंने ये concept launch किया, eat, sleep, no exercise, जिस पे आज हम बात करेंगे। So जैसे वंदना जी ने एक बात भी यहाँ पे बोली कि आप खुद खाना छोड़ दीजिए बट किसी को खाना मत खिलाना छोड़िएगा, यही होता है। जैसे ही दिमाग में वर्ड डाइटिशियन आता है तो लगता है कोई आएगा जो बताएगा भूखा कैसे रहना है, कोई आएगा जो बताएगा खाना कैसे खाना छोड़ना है। वेल, यही गलती हम सबसे ज्यादा अपनी डाइट में कर रहे हैं। यही गलती है जिसकी वजह से हम में से हर कोई पतला होना तो सोचता है, वो पतला हो नहीं पाता है। बिकॉज हम डाइट का मतलब सिर्फ एक चीज से जानते हैं कि डाइट का मतलब है भूखे रहना। वेल, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। डाइट का मतलब भूखे रहना बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज हम में से, आई एम श्योर, बहुत सारी फीमेल्स ने या हम सब ने ट्राई किया होगा पहले वेट रिड्यूस करना, राइट, बट सबसे पहले हमारी कहाँ पे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम भूखे 1 दिन तक रह सकते हैं, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, एंड उसके बाद हम क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट डू डाइट। सो लेट्स चेंज दिस माइंडसेट जो मैं पूरी दुनिया में कर रही हूँ कि डाइट का मतलब भूखे रहना नहीं है। बिकॉज भूखे आप लंबे समय तक नहीं रह सकते, और अगर भूखे रह के आप अपने वेट को रिड्यूस कर लेंगे, बट क्या होगा जैसे आप छोड़ते हैं वो सब कुछ वापसी आ जाता है। और इसी चीज को जब हमारे बच्चे, हमारी डॉटर, हमारे बेटे, राइट, हमारे ग्रैंडसन, ग्रैंड-डॉटर हमें देखते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं भूखे रह के, तो उनके अंदर भी ये मोटिवेशन चला जाता है कि डाइट का मतलब अगर ये है तो आई कैन नॉट डू डाइट। और ये बहुत सारे बच्चों में आने लग गया जब वो, क्योंकि बच्चे अपने मदर्स को फॉलो करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि डाइट का मतलब भूखे रहना बिल्कुल नहीं है, राइट। डाइट का मतलब है खा खा के पतले होना। उसके अलावा I am the first dietitian who trained under a Indian based diet. देखिए, जब देवदीति की बात हो रही है, यहाँ पे हमारी कल्चर की बात हो रही है, लोगों को आज अपना ट्रेडिशन तो बिल्कुल याद आ रहा है, सारी चैलेंज हो रहे हैं, हम ट्रेडिशंस को वापसी लेके आ रहे हैं, बट डाइट को आज हमने इंटरनेशनल लाइफस्टाइल बना दिया है। डाइट का मतलब हमें लगता है कि पतले होने का मतलब है ब्रोकली खाना, पतले होने का मतलब है एवोकाडो खाना, पतले होने का मतलब है हमें ब्राउन राइस खाने हैं। वेल, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये चीजें हम बचपन से खाते आ रहे हैं? क्या ये चीजें हमारी कंट्री में उगती है? जब ये चीजें हमारी कंट्री में नहीं उगती है, ब्रोकली, एवोकाडो, राइट, तो ये हमारी बॉडी पे कैसे सूट करेंगे? एंड
this is what we are doing wrong in the diet, right? हमको ब्रोकली नहीं, हमें गोभी खानी है, बिकॉज गोभी हम बचपन से खाते आ रहे हैं. तो कोई मैटर नहीं करता आप इंडिया में रहे या इंडिया के बाहर रहे, अगर आप इंडियन है, क्योंकि आपने इस क्लाइमेट में बर्थ लिया है. जब माँ के पेट में थे तब भी गोभी खाते थे, जब हम बड़े हुए तब भी गोभी खाते थे, बट आज हमने अपनी लाइफ को एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल बना दिया है. जैसे एक एग्जांपल है, अगर कभी किसी ने, हम में से कभी किसी ने देखा कोई चाइनीज राइट गोलगप्पे वाले के पास खड़े होके मजे से गोलगप्पे खा रहा हो, कोई इटालियन पाव भाजी के पास खड़े होके मजे से पाव भाजी खा रहा हो, बट वी इंडियंस आर ऑलवेज रेडी. जैसे ही कोई इंटरनेशनल चीज आती है राइट, हम कहते हैं ये बिल्कुल सही है, हम उसको अपने डाइट में लगा लेते हैं, हम उसको फैशन स्टेटमेंट बना लेते हैं. जैसे हमने ऑलिव ऑयल को किया, अगर आज से हम 7-8 साल बाद पहले देखे तो सडनली ऑलिव ऑयल आया और वो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया. अगर हम ग्रुप में होते थे और गलती से कोई ये बोल दे कि मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, लगेगा यार ये आउटडेटेड है, राइट? सो समझिए, जिस कंट्री में हमने खाने को भी फैशन बना लिया है, एंड दैट इज द रीजन आवर हेल्थ इज गोइंग फॉर अ टॉस. नहीं, हमें ऑलिव ऑयल इंडियन कुकिंग के लिए बना ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो ठंडे कंट्री के लिए है, एंड दैट इज द रीजन वो ठंडी कंट्री में उगता है, वो हमारी इंडिया में नहीं उगता है. और इंडियन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल है ही नहीं, क्योंकि आप जब उसे ज्यादा जला देते हैं तो वो टॉक्सिन बन जाता है. सो जो बेस्ट ऑयल है यूज करने का वो है आपका देसी घी और सरसों का तेल, जो हम इतने सालों से एशियन टाइम से यूज करते आ रहे हैं. उसके अलावा जैसे ही डाइट हमारे दिमाग में आता है कि अब मुझे वेट रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी किचन में से हम आलू को टाटा बाय बाय कर देते हैं कि आलू हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, आलू को निकालो, इसी आलू से हम मोटे हो रहे हैं, राइट? यही हम लोग करते हैं. बट आई एम द फर्स्ट डाइटिशियन who said, who is doing कि लोगों को आलू खिला खिला के पतला करना. क्या ये कोई जादू है? क्या ये कोई मैजिक है कि आलू खा के कैसे पतले हो सकते हैं? हमने तो यही सुना है कि आलू खाएगी और आलू की तरह मोटी हो जाएगी, राइट? कि आलू की तरह ही गोल गोल हो जाएगी. वेल, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आलू कभी हमें मोटा नहीं करता है. इनफैक्ट आलू हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. इट प्रिवेंट यू फ्रॉम द कैंसर. इट इज अ बिग सोर्स ऑफ द कैल्शियम, राइट? एंड अगर आप उसे अपनी डाइट में से हटाते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ इशू हो सकते हैं. और बिल्कुल आप आलू के साथ, चाहे आप आलू गोभी खाइए, आलू मटर खाइए, एंड यू कैन रिड्यूस योर वेट. उसका एक एग्जांपल है, अगर आलू अनहेल्दी होता, राइट? अगर आलू अनहेल्दी होता, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जब हम उसे कुछ खिलाना शुरू करते हैं, तो हम उसको आलू का मैश क्यों देते हैं? बिकॉज इट इज हेल्दी. सो बिल्कुल राइट, आप अपनी डाइट में आलू इंजॉय कर सकते हैं, एंड आलू इंजॉय करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो हमारा स्टेपल फूड है. हम बचपन से आलू खाते आ रहे हैं. अगर आलू से मोटे होते तो पूरी दुनिया ही मोटी होती. सो इसी तरह के मिथ है जो हम लोग वेट लूज में फॉलो करते हैं, राइट? एंड दैट इज द रीजन हम लोग अपनी जर्नी पे कभी पहुंच नहीं पाते हैं. हम अपनी डाइट को एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल बना देते हैं. हम उसे एवोकाडो बना देते हैं, उसे ब्रोकली बना देते हैं, आलू खाना छोड़ देते हैं. गाइस, वी हैव टू, बिकॉज़ माय डॉटर ऑलवेज कम एंड से हेलो इन एवरी लाइव सेशन. से हेलो. गुड, गुड, राइट? सो ये गलती नहीं कीजिए. सेकेंड, आजकल अगर हम देखा जाए तो मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, डायबिटीज जैसी चीजें बड़ी कॉमन हो गई है. आज जैसी 40 साल की हम एज में आते हैं तो हमें सबसे पहले डर लगा रहता है कहीं मुझे प्री मेनोपॉज तो नहीं हो जाएगा, राइट? और स्पेशली स्टेज होती है 40 to 50 इयर्स, जब हमारा वेट सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है. तो उसमें आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए? उससे पहले आई लाइक टू टेल यू, जैसे डाइटिशियन की बात आती है, डाइट की बात आती है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों में से बड़े लोगों ने डाइटिशियन को फॉलो किया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम डाइटिशियन के पास जाते हैं, हम उनको कंसल्ट करते हैं और साथ में बहुत सारी चीजें हम उनसे खरीदते हैं. तो सबसे
पहले आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज आज तो आप डाइटिशियन से चीजें लेके मोटे हो पतले हो जाएंगे, बट जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं हमारा सारा वेट बाउंस बैक कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आई गॉट माई 17 franchises around the world, but this is the policy of my company कि हम किसी को अपनी तरफ से कुछ नहीं देते हैं. रीजन यही है कि आज तो आप अपनी हार्ड एंड मनी उन चीजों पे इस्तेमाल कर लेंगे, बट व्हाट आफ्टर दैट? तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है. आपकी खुद की किचन सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है. कहते हैं ना कि अगर हम इस यूनिवर्स से बने हैं तो सारे आंसर इस यूनिवर्स में ही छुपे होंगे. बिल्कुल. सो आपकी किचन ही सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है, जिसमें आपको पतले होने की दवाई भी मिल जाएगी, आपकी बीमारियों से लड़ने की भी दवाई मिल जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने की भी चीजें मिल जाएगी. एक छोटी सी टिप है जो एवरीबॉडी ऑफ अस कैन फॉलो. जब आप लंच और डिनर करते हैं, उसके साथ आपने देखा था बचपन में हमारी दादी माँ, नानी माँ खाने के साथ हरी मिर्ची खाती थी, राइट? सो बिल्कुल आप अपने लंच और डिनर के साथ हरी मिर्ची लीजिए, बिकॉज जो हरी मिर्ची होती है वो क्या करती है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है, आपको विटामिन सी देती है और आपकी स्किन पे चार्म देती है, राइट? और अगर आप लोग अगर हमें मिर्ची लगती है तो आप कैसे हरी मिर्ची ले सकते हैं? जैसे आपने अपनी रोटी ली, सब्जी ली, उसमें छोटा सा टुकड़ा आपने हरी मिर्च का रखा और बाकी पार्ट आपने चबा लिया एंड ग्रीन चिली आपने गल्प कर ली. उसके अलावा आप सुबह एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं. बहुत लोगों को जैसी किचन स्पाइसेस की बात दिमाग में आती है तो आई एम श्योर आप सबने जीरे का पानी और मेथी का पानी जरूर लिया होगा, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो सोशल मीडिया पे घूमती रहती है. जैसे पतले होने की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? जीरे का पानी या मेथी का पानी. और मेरे क्वेश्चन है, कितने लोग जीरे के पानी और मेथी के पानी से पतले हो गए हैं? Nobody, no one, because ये बिल्कुल गलत है. अगर आप जीरे का पानी और मेथी का पानी ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं? जैसे हम रात भर कपड़े भिगोते हैं, वैसे ही आपने उसको भिगोया, राइट? उसका सारा वेस्ट निकाल लिया, सारा लेबर हैंड का वेस्ट, सारा डस्ट पोल्यूशन, और सुबह हमने सोच के कि हम पतले हो जाएंगे और हमने पानी पी लिया. क्या उसके अंदर जीरा मिक्स हो गया? क्या उसके अंदर आपका कोरिएंडर पाउडर, आपका धनिया मिक्स हो गया? नॉट एट ऑल. तो सबसे पहले जब आप किचन स्पाइसेस लेते हैं तो आपको डायरेक्टली लेना है जैसे आपको नेचर ने दिया है. तो आपको एक स्मॉल सी ट्रिक मॉर्निंग में फॉलो करनी है, और ये स्पेशली आपकी टमी फैट के लिए है. उसके लिए आपको क्या करना है? एक मैजिकल टमी रिड्यूस आपको मिक्सचर बनाना है. उसमें आपको क्या करना है? आपको 1 चम्मच हल्दी लेना है, चुटकी भर उसके अंदर आपको ब्लैक पेपर डालना है, जो आपकी काली मिर्च होती है. उसके अंदर आपको बिल्कुल हाफ टी स्पून आपको कोरिएंडर पाउडर डालना है, जो आपका होता है धनिए का पाउडर. आपको ये मिक्सचर बनाना है और सुबह खाली पेट आपको ये 1 चम्मच नॉर्मल पानी के साथ लेना है. गर्म पानी या लूकवार्म वाटर के साथ नहीं लेना है. और सेम चीज आपको डिनर के बाद लेनी है. तो बेसिकली जो ये मिक्सचर है, ये क्या करेगा? ये आपके टमी में जाएगा, आपके बॉडी में जाएगा, और ये आपके टमी फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. तो क्या हमने इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए? नॉट एट ऑल, राइट? हमने अपनी किचन का ही इस्तेमाल किया. और हल्दी आपको सिर्फ वेट रिड्यूस में नहीं, आपके इम्यून सिस्टम में भी काम आएगी. और जैसे मैंने बोला, गर्म पानी या लूकवार्म वाटर नहीं लेना है. क्या आप लोगों के दिल में क्वेश्चन नहीं आया, गर्म पानी तो लेना होता है वेट लूज के लिए, गर्म पानी तो बहुत जरूरी होता है? Well guys, today you're gonna say thanks to Lavina to get me here. Only the top dietitian can tell you कि गर्म पानी से आप मोटे होते हैं, लूकवार्म वाटर से आप मोटे होते हैं. जाइए इस बात के बारे में सर्च कीजिए. बिकॉज जैसे हम सपोज अभी हम एसी में है एंड आई एम फीलिंग ऑल एनर्जेटिक, अगर मुझे गर्म भट्टी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? मेरा एनर्जी लेवल डाउन चला जाएगा. सेम गो फॉर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो. जब आप उसके अंदर गर्म पानी रोज सुबह डालते जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी फैट बर्निंग मशीन, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो धीरे होता चला जाता है. जितना आप मशीन अपनी अंदर की ठंडी रखेंगे,
कूल रखेंगे उतना ही आपकी मशीन चलती चली जाएगी। तभी हम सारी फीमेल्स क्या बोलती है, मैं रोज सुबह गर्म पानी पीती हूँ, फिर भी मैं मोटी की मोटी हूँ, मैं इतनी थक गई हूँ, राइट? यही आता है बिकॉज हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को अंदर से टॉर्चर करते चले आ रहे हैं। सो गाइस, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने लंच और डिनर के साथ आपको हरी मिर्ची लेनी है, एंड यू कैन ट्राई दिस मैजिकल आपका टमी रिड्यूस मिक्सचर आप ले सकते हो, और इसको सुबह लेना है और आपको रात को लेना है। एक्सक्यूज मी शिखा, एक्सक्यूज मी, ये जो आपने मिक्सचर बताया हल्दी, काली मिर्च एंड धनिया पाउडर का, इट इज टू बी टेकन बोथ द टाइम्स? यस, ये एम्प्टी स्टमक लेना है मॉर्निंग के अंदर नॉर्मल पानी के साथ, और ये डिनर के बाद भी लेना है। डिनर के how long after dinner? नहीं, एकदम से आप ले सकते हैं, मतलब डिनर की कोई जरूरत नहीं है, राइट? जैसे आपने डिनर फिनिश, किचन में गए, आपने सुबह का बना के रखा हुआ है, एकदम से मुंह में डाला और पानी के साथ गल्प कर दिया, दैट्स ऑल। And how Right? much quantity, Shikha? How much quantity of the आप portion? कैसे बनाते हैं? जो आपका एक बनेगा उसके अंदर क्या करना है आपको, वन टाइम में 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ आपको इसके अंदर पिंच ऑफ ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है, एंड हाफ टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर जो धनिया है। आपको ये एक टाइम की आपकी क्वांटिटी रहेगी जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 चम्मच के करीब हो जाएगी, वो आपको लेना है। तो टोटल चम्मच हो गए 3 चम्मच, आई गेस। यस, 3 टीस्पून। इसको बना के रख सकते हैं हम, बना के बना के रख सकते हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, राइट? ओके, मोस्ट वेलकम। आगे अब बात हो रही है ग्रीन टी, राइट? ग्रीन टी। सो जैसे ही दिमाग में बहुत डाइटिशियन आता है, तो डाइटिशियन की एक छवि बनती है कि वो बैठी हुई है जिसके साइड में सैलेड है और ग्रीन टी है। इनफैक्ट ये मेरे साथ होता है, जब मेरे यहाँ घर पे फ्रेंड्स आते थे, राइट? अब तो थे हो गया है, राइट? जब हमारे घर में पार्टी होती थी, सारे फ्रेंड्स ऑयली खा के, सब कुछ खा के, उसके बाद कहते थे शिखा कैन आई हैव अ ग्रीन टी? एंड मैं उनसे पूछती थी क्यों? कहते खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या? और यही हम लोग करते हैं, हम ग्रीन टी को एक मैजिकल टी सोचते हैं कि पहले हम सब कुछ ऑयली खा ले और उसके बाद ग्रीन टी ले ले और हम पतले हो जाएंगे। या पतले होने की बात जब हमारे दिमाग में आती है तो हमें क्या लगता है, ग्रीन टी, दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी अब नहीं लेनी है बिकॉज हमें पतला होना है, राइट? वेल गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज क्या आपकी, फिर मैं पूछूंगी आप सबसे, क्या आपने अपनी दादी माँ, नानी माँ को देखा है, या अपने आप को जब हम शादी होके आई थी ग्रीन टी पीते हुए, सडनली फिर फैशन आ गया, राइट? फिर खाना फैशन बन गया कि अब पतला होना है तो ग्रीन टी लेनी है। वेल, ग्रीन टी हमारे पतले होने में कोई रोल प्ले नहीं करती है, और बहुत लोग पतले होने के चक्कर में दिन में से 7-8 कप ग्रीन टी पी जाते हैं, और वो आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है, वो आपकी स्किन को भी अफेक्ट कर रही है, और उससे आपको एलर्जी भी कई बारी हो जाती है। सो अगर आप वेट लूज में है तो बिल्कुल आप दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज जब आप दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी ले रहे हैं तो दूध में आप दूध के तौर पे आप कैल्शियम भी ले रहे हैं, राइट? सो एंड इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कॉफी होती है वो 60 मिनट्स तक, 60 मिनट तक आपके मेटाबॉलिज्म को चलाती है, और कॉफी आपके मेटाबॉलिज्म को 30 मिनट्स तक चलाती है। तो बिल्कुल जब आप दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी पी रहे हैं, आप पतले भी हो रहे हैं और दूध के फॉर्म में आप कैल्शियम भी ले रहे हैं। बस उसमें चीनी की जगह, राइट, चीनी नहीं इस्तेमाल करनी है, चाहे वो व्हाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो। चीनी, हर तरह की चीनी के अंदर बहुत सारी कैलोरीज होती है, और वो सिर्फ आपको मोटा ही नहीं करती है, आपकी फेस पे रिंकल्स भी देती है, और आपकी फेस पे पिगमेंटेशन और एक्ने भी देती है, और अर्ली एजिंग भी देती है, क्योंकि चीनी के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। उसकी जगह आप स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीविया, राइट? वो इजिली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, आप घर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, एंड 1 पैकेट ओनली कम ऑफ 80 रुपीज। और अगर स्टीविया नहीं आपको मिल रही है, आपको बाहर प्लीज जाने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक कर सकते हैं, अपनी चाय कॉफी में आप 2 ग्लूकोज के बिस्किट डाल दीजिए, चाहे पार्ले जी डाल दीजिए
या फिर आप मैरीगोल्ड डाल दीजिए, कोई भी 2 बिस्किट डाल के आप उसे मिक्स कर दीजिए, तो आपकी चाय वैसे भी मीठी और टेस्टी बन जाएगी, राइट? सो यही हम लोग गलती करते हैं कि जब डाइट की बात आती है, हमने अपने एंसेस्टर्स को, हमारी एशियन चीजों को छोड़ दिया है। हमने डाइट को एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल बना दिया है, जो हमें ब्रोकली, एवोकाडो, ग्रीन टी की तरफ लेता जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन आज इतनी अर्ली एज पे पीसीओडी जैसी, डायबिटीज जैसी, थायराइड जैसी बीमारियां इतनी कॉमन हो गई है। जो बीमारियां 60 साल से पहले बात होती थी, अब वो इतनी अर्ली एज पे हो रही है। शिखा, एक क्वेश्चन है। बहुत सारी फीमेल्स है, या प्लीज शिखा, एक क्वेश्चन है बीच में, जब आपने हल्दी बोला था, somebody had put it in the chat, कि वो कच्ची हल्दी यूज कर सकते हैं उसमें? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कच्ची हल्दी, जैसे मैं बात कर रही हूँ फैशन, कच्ची हल्दी भी तो एक फैशन ही आया, बिकॉज मुझे तो याद है मैंने बचपन से कभी कच्ची हल्दी ना देखी थी ना सुनी थी। सो गाइस, डोंट डू दिस मिस्टेक, राइट? ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स के साथ हुआ है। कच्ची हल्दी लोगों को बहुत नुकसान कर रही है, क्योंकि वो चीजें हम बचपन से नहीं खा रहे हैं। देखिए, इस्तेमाल वो चीजें करें जो हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ही आपकी बॉडी को सूट करेगी। तो आप जो हल्दी यूज कीजिए वो नॉर्मल पिसी हुई कीजिए, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। और यहाँ पे आज फिर हम बात करेंगे प्री मेनोपॉज की, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी एक क्वेश्चन और आया है। When you said about sugar, somebody is asking, गुड़ या शक्कर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, गुड़ और शक्कर मैं बिल्कुल मना करती हूँ, बिकॉज आजकल जो गुड़ मिलता है, जैगरी जिसे हम कहते हैं, राइट, वो बिल्कुल चीनी से बनी हुई होती है और प्योर नहीं मिलती है। और उसके अलावा जब गुड़ बनाया जाता है तो उसके अंदर गन्ने का इस्तेमाल होता है, जो चीनी के लिए भी होता है, राइट? तभी बहुत सारी लेडीज है इतने टाइम से पतले होने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने चीनी भी छोड़ दी है, बट वो गुड़ यूज करते हैं, हनी, शहद यूज करते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं पाते। बिकॉज याद रखिए, जो चीज मीठी है उसके अंदर अपनी कैलोरीज है। तो अगर आप चाय बना रहे हो, उसके अंदर ज्यादा दूध डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इतनी मिठास हो जाएगी कि आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा बड़े लोगों को ये मिथ रहता है कि मैंने चीनी छोड़ दी है तो मेरा अब ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, मुझे चक्कर आएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब आप रोटी भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, सब चीज के अंदर अपना नेचुरल ग्लूकोज होता है। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर या चीनी से बनी हुई किसी भी चीज में आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, राइट? अब हम बात करेंगे प्री मेनोपॉज की, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है जो मिडिल एज है, राइट? सो जब 40 की एज हमारी होती है, 50 हो जाती है, 50 क्रॉस कर जाती है, बिकॉज प्री मेनोपॉज की वजह से हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। एक्चुअली वो एज है, राइट, जिस टाइम हमें अपनी बॉडी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज वो एक टाइम होता है 40 से लेके 55 का, जब हमारी मशीन सबसे ज्यादा स्लो होती है। तो उसके लिए आप एक मैजिकल पाउडर का सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, विच आई एम श्योर गोना बेनिफिट एवरीबॉडी, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर आपको ईसब घोल लेना है। और अगर ईसब घोल अवेलेबल नहीं है, प्लीज बाहर मत जाइए। क्या कीजिए, आपका जो नॉर्मल आटा होता है, गेहूं का आटा, उसको छानिए, उसके अंदर से जो चौकर निकलेगा, राइट, उसके अंदर से जो चौकर निकलेगा उसका 1 चम्मच लीजिए। उसके बाद उसके अंदर छोटी वाली जो हमारी काली सरसों होती है, राइट, उसका आप आधा चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद उसके अंदर पिंच, सिर्फ पिंच, थोड़ी, ज्यादा नहीं, बिकॉज आपका मुंह जल सकता है, पिंच भर आप उसके अंदर हींग डाल दीजिए। और पिसा हुआ जीरा 1 चम्मच उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। और आप उसको मिक्स करके, राइट, ये वाला पाउडर आप सुबह खाली पेट लीजिए, लंच के बाद लीजिए और डिनर के बाद लीजिए। आप देखेंगे, एक तो जो आपके प्री मेनोपॉज में हमें हॉट फ्लैशेस होते हैं, राइट, जो गर्मी लगती है, मूड स्विंग्स हमारे होते हैं, आपके वो नहीं होंगे। उसके अलावा जब प्री में आपका मेनोपॉज हो जाता है तो हमारा पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज सडनली हमारे पीरियड्स रुके होते हैं। तो आप देखेंगे आपका टमी भी इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, राइट गाइस? सो
क्या अगेन मैं बोलूंगी, क्या हमने इसके लिए कोई फैक्ट्री से चीज ली, क्या हमने इसके लिए कोई महंगी चीज ली? नहीं, हमारा किचन ही सबसे बड़ा इस आंसर है हमारी हर हेल्थ इश्यूज का। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं सबको एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। एक क्वेश्चन है, जो आपने अब ये ईसबगोल का बताया है, ईसबगोल, काली सरसों, जीरा, हींग 3 times a day। 3 times a day, बिल्कुल, yes, तो आप ये भी एम्प्टी स्टमक लेना, और जो पहले आपने बताया वो भी एम्प्टी, दोनों चीजें इकट्ठी ले सकते हैं? स्पाइसेस तो एम्प्टी स्टमक ही लेना है, और लंच और डिनर के आप तुरंत बाद ले सकते हो। तो ऐसा नहीं कि पहले आपने खाना खाया फिर 1 घंटा वेट किया, नॉट एट ऑल। जैसे ही आपका लंच फिनिश हुआ, लिया, 1 चम्मच मुंह में डाला। नहीं, जैसे ये दोनों चीज इकट्ठे कर सकते हैं, आपका ये हल्दी वाला और ये, यस यस, और ये इन सब का हम मिक्सचर बना के रख सकते हैं इकट्ठे? एब्सोल्युटली, मिक्सचर बना के आप रख सकते हैं। जैसे 1 हफ्ते का मिक्सचर बना लिया और रख लिया, क्योंकि Absolutely. we don't have to mix it with water, we can have water on the top। हमें इसको वाटर में मिक्स नहीं करना, हमें ऐसे ही ड्राई खाना है और ऊपर से पानी लेना है। वो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? जब हम मिक्स कर देते हैं, आप पूरा ग्लास पानी पी रहे हैं, इससे अच्छा क्या है 1 चम्मच आपने मुंह में रखा, ठंडा पानी लिया, उसको सीधा डाल दिया, एंड यू डन, वर्क इज डन। ओके, थैंक यू। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे सब सुन रहे हैं एंड एवरीबडी थिंकिंग कि यस शी इज अ बिग डाइटिशियन, बट कह रहे हैं आलू खा लो पतले हो जाओगे, ग्रीन टी यू नो नहीं पिए पतले हो जाएंगे। ऐसा भी होता है? ये मतलब ऐसा भी होता है? क्वेश्चन मार्क। तो मैं सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। Well, this was me when I was 86 kg. राइट, ये मेरी खुद की एक ट्रांसफॉर्मेशन है when I was 3 XXL। यस, सो ये एक मेरी खुद की जर्नी रह चुकी है जब मैं 86 kg की थी, राइट? I was like 3 XXL and then in a year I become 52 kg। So that is the reason, you know। और जैसे मैंने अपना ये 40 kg वेट रिड्यूस किया, क्या होता है जब लोग 40 kg वेट रिड्यूस करते हैं, उनका फेस का चार्म पूरा चला जाता है, उनकी स्किन पूरी लूज हो जाती है, राइट? द रीजन क्या होता है? कोई मैटर नहीं करता, आप कितना मेकअप लगा लीजिए, क्या कर लीजिए, और ये आपके फ्रेंड्स के साथ आपने देखा होगा, व्हेन दे रिड्यूस वेट उनका फेस का चार्म चला जाता है, स्किन लूज हो जाती है। रीजन होता है बिकॉज आप पतले नहीं हुए हो, आप बीमार हुए हो। जैसे हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखते हैं, करीना, ऐश्वर्या, दे लॉस्ट सो मच ऑफ वेट, बट क्या किसी सेलिब्रिटी को आपने कभी देखा कि वेट रिड्यूस हो गया है बट फेस का चार्म चला गया है, स्किन लूज हो गई है? नहीं, बिकॉज खाना खाना बहुत जरूरी है, और अगर आप खा के अपनी जर्नी को क्रॉस करेंगे, देन नोबडी कैन स्टॉप टू रीच यू दैट ब्यूटीफुल बॉडी। अब हम बात आते हैं टाइम पे, राइट? टाइम पे तो जैसे ही वेट लूज की बात आती है, सबसे पहले वेट लूज में होता है, चलिए मैं वंदना जी से पूछना चाहूंगी। वंदना जी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, राइट? हमारी डाइट में ब्रेकफास्ट का टाइम क्या होना चाहिए? मैं तो लेती हूँ बाय 9ish, वैसे 8:30 हो जाना चाहिए आफ्टर 2 hours ऑफ योर वेकिंग अप। राइट, तो 8:30 हो जाना चाहिए हमारा ब्रेकफास्ट, एब्सोल्युटली। और लंच का टाइम कितने बजे? मेरा 1:32। वेट लूज में कितने बजे होना चाहिए? होना कितने, अगर 8:30 हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो 12:30 तक हो जाना चाहिए, 12:31 तक। 12:31 तक हमारा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और डिनर हमारा कितने बजे हो जाना चाहिए? 7:30 7:30 हो जाना चाहिए, बिल्कुल, राइट? और यू नो एवरीबडी इज एग्री विद दिस, राइट? कि हमारा ब्रेकफास्ट 8:30 होना चाहिए, लंच 1 o'clock होना चाहिए, और डिनर 7:30 होना चाहिए, राइट? बट I ask everybody, इसका मतलब हम लोग तो सिंड्रेला बन जाएंगे, राइट? वी हैव टू बिकम अ सिंड्रेला। अब सपोज यू नो अब लॉकडाउन खुल गया है, राइट? और वंदना जी ने बहुत आज यू नो बहुत बड़ी अभी स्टॉक एक्सचेंज में हुई है, रात को मीटिंग्स हुई है। अगर वंदना जी 12 बजे जगती हैं, आपका ब्रेकफास्ट गया, और फिर उसके बाद अगर आप शॉपिंग पे चले जाते हो और अगर 6 o'clock तक वापस नहीं आते तो आपका लंच भी गया। उसके बाद अगर मार्केट में बड़ी सारी चीजें पसंद आ जाती है और रात को अगर आप गलती से 10 बजे आ गए तो डिनर भी गया। हम लोग वैसे ही पतले हो जाएंगे सब।
So guys, not at all, हमें सिंड्रेला बनने की कोई जरूरत नहीं है, right? And the first dietitian जो कहती है अपना टाइम फॉलो कीजिए, बिल्कुल हमें कोई हमारी बॉडी के अंदर घड़ी नहीं है, राइट? आप चाहे अपना ब्रेकफास्ट दोपहर के 4 बजे कीजिए, डिनर लंच रात के 12 बजे कीजिए, डिनर सुबह के 6 बजे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर घड़ी होती तो हमारी लेबर क्लास मेड और बेगर सबसे ज्यादा मोटे क्यों नहीं होते? लोग कहते हैं वो बहुत काम करते हैं, हम भी लोग बहुत काम करते हैं, या हम लोग सेशंस ले रहे हैं, आप लोग सेशंस करा रहे हैं, घर का काम देख रहे हैं, बच्चे हैं, तो एवरीबडी इज वर्किंग। तो डाइट में टाइम फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैन मेड है। कभी हमारे साथ ये हुआ है कि जैसे 8:30 बजे अंदर से आवाज आई, टन टन टन, इट्स योर लंच टाइम। जैसे 1 बजा अंदर से आवाज आई, टन टन टन, इट्स योर लंच टाइम। और जैसे ही 7:30-8 बजे तो अंदर से आवाज आई, टन 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 टन, इट्स योर डिनर टाइम, राइट? नॉट एट ऑल। तो बिल्कुल अगर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग खाएंगे और उससे आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो वो वेट कभी बाउंस बैक नहीं होगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं 7 बजे खाइए, 8 बजे खाइए। बिकॉज उस टाइम हम लोग 9 बजे तक सो जाते थे, राइट? आज हम कितने बजे सो रहे हैं? 1 बजे, रात के 2 बजे, रात के 5, सुबह के 5 बजे। तो अगर आप अपना डिनर 7 o'clock करेंगे, राइट, और आप रात के 2 बजे सोएंगे, एंड दैट इज द रीजन हमें क्रेविंग होती है, राइट? दैट इज द रीजन हम डाइट सोचते हैं और रात को 7 बजे अपना शाम को खाने के बाद फिर रात को 12 बजे फ्रिज में जाके चीजें ढूंढते हैं, राइट? सो ये गलती हम लोग करते हैं। तो यू कैन फॉलो योर ओन टाइमिंग। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, राइट? और जब से लॉकडाउन हुआ है, एवरी फीमेल इज डूइंग लॉट ऑफ एक्सरसाइज, राइट? घर का काम इतना ज्यादा बढ़ गया है, राइट? और जिनके पास परमानेंट है घर पे वो तो लकी है, राइट? सो एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे मैं सुनीता जी से पूछना चाहूंगी, राइट? यस, सो इज शी देयर? सपना और सुनीता? सपना, यस यस। हाँ जी बताइए। सो सपना जी, आपको क्या लगता है, राइट, एक्सरसाइज का, राइट, रोल कितना होता है वेट लूज में? Exercise is very good for your well-being, but for weight reduction, it's mainly diet. So I've, in my journey or long journey of losing and then gaining, losing and gaining, this is what I've realized. Yeah, you were saying something, please. Yeah, sorry, कोई call आ गया था. So what I've realized, exercise plays a very big role in your internal well-being and keeping a glow on your face. But diet is the one by eating a right, proper, nutritive food, which you can lose weight or gain weight. Exercise, Absolutely. So absolutely right. जब यहाँ पे आई वेलबींग के लिए, राइट, बिल्कुल एक्सरसाइज जरूरत है। बट मुझे तो पता है एक बात, एक्सरसाइज एक ऐसी जगह है, जब कोरोना नहीं था, कि जब तक हमें उसे ज्वाइन करना होता था ना, हम रोज चेक करने जाते थे जगह, यार कैसी है, पैसे भरने वाली हूँ, जरा देख लेती हूँ पैसे भरूं ना भरूं। और जैसे ही पैसे भरे उसके बाद हम उस जगह को भूल जाते हैं। एंड एब्सोल्युटली आई कैन रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक्सरसाइज ऑफ कोर्स यू कैन डू, इट इज गुड फॉर योर वेलबींग, बट आज हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई थी दैट वी डोंट हैव अ टाइम। बट पीपल गिव द रीजन कि एक्सरसाइज इज important for the weight lose. Well, not at all. I reduced 40 kg. I am making people, more than 1 lakh people, losing even 30-40 kg without exercise, right? Because जो हम खाते हैं वो ही हम होते हैं। तो अगर अभी भी आप ये रीजन देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है because of my kids, because of my work, and I cannot exercise, that is the reason I cannot lose weight, please go on my page and remember this, right? Go and remember this. एक्सरसाइज की बिल्कुल जरूरत नहीं है वेट लूज में। और लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, फीमेल्स, और मे बी हमारी डॉटर्स ये गलती कर रही हो, जिम, राइट? जिम इज नॉट मेंट फॉर द फीमेल्स, राइट? बिकॉज जो जिम होता है वहां पे लड़कियां जाके हैवी वेट उठा रही हैं, मशीनों का फीमेल्स इस्तेमाल कर रही है 50 साल की उम्र पे, राइट? 60 की एज पे ट्रेडमिल पे भाग रही है, उससे घुटनों पे अफेक्ट आ रहा है। सो अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, आप योगा कीजिए,
आप हल्का बहुत आप जुम्बा कीजिए, डू एनीथिंग विच योर बॉडी अलाउड, बिकॉज जो जिम होता है दैट इज लाइक अ पुराना टाइम अखाड़ा विच इज मेंट फॉर द मेल नॉट फॉर द फीमेल। तभी आपने देखा होगा आपकी डॉटर्स के साथ या आपके साथ कभी ये हुआ होगा, जब तक जिम किया मे बी आपने वेट रिड्यूस किया और जैसे आप छोटे बॉडी अजीब सी राउंड राउंड हो जाती है, गोल गोल हो जाती है। और आजकल वो यंग गर्ल्स में 20-25 इयर्स की गर्ल्स में हमको देखने को मिलता है कि बॉडी एक अजीब सी राउंड वेट की हो जाती है। सो गाइस, इफ यू वांट टू एक्सरसाइज, डू द नॉर्मल योगा, जुम्बा, बट नॉट आवर जिम एक्सरसाइजेस, एंड डोंट गिव द एक्सक्यूज कि I cannot exercise and that is the reason I cannot lose weight, right? So now I can see a lot of people is asking questions, right? So if there's any question you can can ask me, right? आप लोग के पूछ भी सकते हैं। और उसके अलावा चलिए अब हम बात करते हैं right रोटी की, right? फैक्ट वर्सेस मिथ की। जो डाइट में हमें फैक्ट होते हैं, मिथ होते हैं, आज हम उसको ब्लास्ट करेंगे। तो जैसे ही बात रोटी की आती है, right? Okay, why you're saying gym is for the men's? Okay, why I'm saying the gym जो होते हैं वो men's के लिए होते हैं, because it's just like a पुराना time अखाड़ा, right? वहां पे जाके आप heavy lifting कर रहे हैं, but nowadays गर्ल्स ने भी उसको कंपटीशन बना लिया है। इनफैक्ट मैंने कुछ वीडियोस में देखा लड़कियां प्लैंक कर रही है और अपनी कमर पे 30 किलो का वेट रख रखा है। तो कैन यू सी व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द फीमेल बैक, राइट? सो नाउ लेट्स टेक इट फैक्ट वर्सेस मिथ। तो जैसे डाइट की बात आती है तो हमें क्या लगता है कि डाइट का मतलब है ब्रान आटा खाना है, ओट्स आटा खाना है, राइट? वेल, नॉट एट ऑल। यू कैन एंजॉय योर गेहूं, राइट? अपना वीट आप इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज बचपन से हम गेहूं खाते हैं। अगर गेहूं से हम मोटे होते तो बचपन से क्या हम लोग मोटे नहीं होते, राइट? उसके बाद जैसे ही वर्ड डाइट हमारे दिमाग में आता है, और उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ डायबिटीज के बारे में, बिकॉज आई गेस यहाँ पे डायबिटीज के बारे में किसी ने पूछा है। सो डायबिटीज, राइट, बहुत बारी हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, राइट? एंड बहुत लोग डायबिटीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं। वेल गाइस, नॉट एट ऑल। अगेन आप अपने किचन स्पाइसेस में से डायबिटीज को भी क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है। आप गुरमार एक पाउडर आता है जो आपको फ्लिपकार्ट में से मिल जाएगा, राइट? वो भी एक नेचुरल एक आपका स्पाइस होता है, गुरमार, GURMAR। अगर किसी की 400 प्लस डायबिटीज है, राइट, तो गुरमार पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह आधा चम्मच और डिनर के बाद आप देखेंगे 10 दिन में आपकी डायबिटीज हाफ हो जाएगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको सुबह खाली पेट 1 चम्मच आपको सिनेमन पाउडर, जो दालचीनी का पाउडर होता है, वो सुबह 1 चम्मच लेना है। और डिनर के बाद आपको 1 चम्मच सिनेमन पाउडर लेना है और 2 छोटी हरी इलायची लेनी है। बिकॉज जो सिनेमन पाउडर होता है, दालचीनी का पाउडर होता है और छोटी हरी इलायची होती है, वो दोनों ही आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और फीमेल्स जो थायराइड से सफर कर रही हैं, बिकॉज थायराइड एक रीजन होता है आपका वेट गेन होता है, तो सबसे पहले आपको अपने थायराइड को कंट्रोल में करना है, राइट? और बहुत लोग मैंने देखा है सप्लीमेंट्स लेते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं सप्लीमेंट्स, बट सप्लीमेंट्स में आप न्यूट्रिशन मत ढूंढिए, बिकॉज ये याद रखिए, अगर हमें जो भी बीमारी हुई है वो हमें यूनिवर्स ने दी है, तो उसका आंसर भी आपको यूनिवर्स में ही मिलेगा। और जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपकी फैक्ट्री में बन रहे हैं, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बट किचन के स्पाइसेस में आप 100% न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, थायराइड में एक मिक्सचर आप बनाएंगे जो एवरी डे आप अपने लंच के बाद लेंगे। तो उसकी रेसिपी है, आपको उसके लिए क्या करना है, राइट? आपको भुना हुआ जीरा लेना है। भुना हुआ जीरा, पहले जीरे को भून लीजिए, राइट? और उसके बाद उसका पाउडर बना लीजिए। तो 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, उसके अंदर जो बड़ी इलायची आती है, बड़ी इलायची का आप पाउडर बना लीजिए, राइट? और उसको आपको आधा चम्मच उसके अंदर मिलाना है, राइट? तो भुने हुए जीरे के अंदर बड़ी इलायची का पाउडर, और उसके बाद उसके अंदर आपको लेस देन ½ टीस्पून, राइट, आधे चम्मच से कम
आपको काली मिर्ची, ब्लैक पेपर डालना है। और ये पेशेंट जिनको थायराइड है वो लंच के बाद थायराइड का ये पाउडर ले सकते हैं, और वो देखेंगे उनका थायराइड कंट्रोल में आने लग जाएगा और उनकी वेट रिड्यूस भी होने साथ में लग जाएगा, राइट। और अगर ये सिर्फ फीमेल्स भी नहीं, आप अपने घर में अगर किसी मेल को भी थायराइड है तो आप उनको ये पाउडर आप उनको भी दे सकते हैं। शिखा, अभी आपने शुगर के लिए बताया, तो वो मेल्स भी ले सकते हैं? Absolutely, it's very good. ये आपको फ्लिपकार्ट से मिलेगा and it is just for 350-400, right? गुरमार्ग पाउडर, अगर किसी को 400 प्लस डायबिटीज है तो आप ले सकते हो। और ये गुरमार्ग पाउडर जो होता है ये आपकी शुगर क्रेविंग को भी कंट्रोल करता है। तो आप कि अगर शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है तो आप इसको आधा टीस्पून सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, तो आपको शुगर क्रेविंग भी आपकी कंट्रोल में आएगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आए जा रहे हैं बार बार कि जब हम सब कुछ खा सकते हैं अदर देन चीनी, तो फिर पतले कैसे होंगे? और सेकंड क्वेश्चन ये आया, आपने कहा पार्ले जी के बिस्किट खा लो, तो उसमें तो मैदा भी है, चीनी भी है, तो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट पे कि फिर हम पतले कैसे होंगे? बिल्कुल आपने सही बोला। अब यहाँ पे बात आती है, जो पार्ले बिस्किट है, पार्ले बिस्किट को आपको खाना नहीं है, आप उसको एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट के इस्तेमाल पे कर सकते हैं। कि अगर आप स्टीविया नहीं है तो सिर्फ 2 पार्ले जी बिस्किट आप मिक्स कर लीजिए। और ये बहुत बड़ा मिथ है, जो पार्ले जी बिस्किट होते हैं आप उसकी कैलोरी जाके देखिए, इट इज इक्विवेलेंट टू मैदा, इट्स इक्विवेलेंट टू मैरीगोल्ड बिस्किट। और जबकि राइट, जो आपका ओरियो बिस्किट हुआ, हाइड एंड सीक बिस्किट हुआ, वो 2 बिस्किट मिला के आपकी एक रोटी बन जाती है। और उसके अलावा जैसे सबने यहाँ पे बोला कि अगर हम सब कुछ खा ले, हम आलू भी खा ले, गोभी भी खा ले, हम नॉर्मल गेहूं की रोटी भी खा ले, तो हम पतले कैसे हो जाएंगे? वेल, यही क्वेश्चन मुझे आता है मेरे सेलिब्रिटी से भी, मेरे नॉर्मल क्लाइंट से भी, जो मुझे कहते हैं हम तो कुछ खाते नहीं हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं, लगता है हवा पानी लग जाता है। उनको मैं एक जवाब देती हूँ, अगर हवा पानी से हम मोटे होते तो जिस कंट्री में अकाल पड़ता वहां पे 200 किलो के लोग क्यों नहीं होते? सो अगर हमें ये लगता है हम कुछ नहीं खा रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, ये हमारा जेनेटिक फैट है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। जब मैं 86 की हुई, मैं बिना खाए नहीं हुई। तो एवरीबडी वी ईट एंड वी गेट फैट। और हमें क्या लगता है, रोटी हमारी दुश्मन है, वी थिंक आलू हमारा दुश्मन है, हमें लगता है गोभी हमारी दुश्मन है। नहीं, जो हम डाइट में गलती करते हैं कि एक चिपी तो खाया है, एक बिस्किट ही तो खाया है, एक बर्फी तो खाई है, बच्चे का आधा बचा हुआ प्लेट में से मे बी उसका पिज्जा ही तो खाया है। वो थोड़ा करके वो हमारा बढ़ता वेट बढ़ने लग जाता है। रोटी हमें कभी मोटा नहीं करती है, अगर हमें मोटा करती तो हम बचपन से मोटे क्यों नहीं होते, राइट। और उसके अलावा बिल्कुल सेशन एंड होने वाला है, मैं फटाफट से एक डाइट चार्ट सबको बता देती हूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे आई हूँ और बिना आपको डाइट चार्ट बता के चली जाऊँ, राइट, ये जस्टिफाई नहीं होगा। सो गाइस, सबसे पहले लॉकडाउन में, राइट, आप लोग, मैं रेगुलरली अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, आई कैन सी लॉट ऑफ माय फॉलोअर्स आल्सो, कि लॉकडाउन में लोगों ने इतने एक्सपेरिमेंट करे, कभी पिज्जा बन रहा है, पास्ता बन रहा है, बिल्कुल आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको चीट मानिए। मैं भी खाती हूँ, राइट, मैं भी पिज्जा, पास्ता, गोलगप्पे, इवन आई लाइक इट, बट उसको चीट की तरह खाइए। उसे महीने में 2 से या 3 बार खाइए, रोज थोड़ा मत खाइए। जब दिन में से आप महीने में से 2 या 3 बार चीट डे ले, तब आप उसको सारा खाइए। और एक सिंपल सा डाइट चार्ट आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले सुबह क्या करना है, जो मैंने आपको वेट लूज पाउडर बताया, आपको वो लेना है। और सुबह आपको खाली पेट 2 लौंग तोड़नी है और मुंह में नॉर्मल पानी से गल्प कर लेनी है। ब्रेकफास्ट में आप मैगी ले सकते हैं या 2 सैंडविच ले सकते हैं या स्टफ रोटी ले सकते हैं। उसके साथ आप अपनी दूध वाली चाय या कॉफी लीजिए, उसके अंदर स्टीविया डाल लीजिए या फिर मैरीगोल्ड बिस्किट डाल लीजिए, राइट, 2 या पार्ले जी बिस्किट 2, सिर्फ 2 डालने हैं। उसके बाद अगर आपको कोई टाइम मिले तो आप फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट में, राइट, आपको एप्पल लेना है, आप अगर मैंगो लेना चाहते हैं या बनाना लेना चाहते हैं
प्लीज उसकी क्वांटिटी ज्यादा मत लीजिए, बिकॉज मैंगो हमें मोटा करता है, राइट। तो अगर आपको लेना है तो उसकी आप 1 या 2 फाक ले सकते हैं। और बहुत लोग गर्मी में गलती करते हैं, क्या वो कहते हैं खरबूजा और तरबूज हम लोग खाते हैं, और मैं आज आपको बताऊंगी खरबूजा और तरबूज हमें बहुत मोटा करता है। और हम क्या बोलते हैं, पानी भी हमारे शरीर को लग जाता है। नॉट एट ऑल, बिकॉज खरबूजा और तरबूज के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है, न्यूट्रिशन उसके अंदर बहुत कम होता है। तो अगर आप खरबूजा या तरबूज खा रहे हैं तो मैक्सिमम उसकी 1 से 2 फाड़ खाइए। उसके बाद लंच में आपको 2 रोटी सब्जी लेनी है। आप सब्जी दाल कुछ भी ले सकते हैं, उसके साथ 1 हरी मिर्ची लेनी है, और जो मैंने आपको पाउडर बताया वो लेना है। शाम को आप टी कॉफी लीजिए, उसके साथ एक छोटा चीला बना के ले सकते हैं। अगर नहीं लेना, इतनी मेहनत नहीं करनी, मत कीजिए। आप 3-4 मेरी गोल्ड बिस्किट खा लीजिए। फिर उसके बाद आप डिनर में अगेन 2 रोटी सब्जी लीजिए। बस रात को आपको दाल नहीं खानी है, दैट्स ऑल। आप दिन में दाल ले सकते हैं, रात को आप सब्जी ले लीजिए, बट रात को दाल मत लीजिए। और उसके साथ हरी मिर्ची लीजिए, और उसके बाद जो मैंने आपको मैजिकल मिक्सचर बताया वो लीजिए। 2 छोटी हरी इलायची लीजिए और 3 लौंग लीजिए, बिकॉज ये सारी चीजें ही आपके मेटाबॉलिज्म पे नेचुरल फैट बर्नर का काम करेगी। एंड यू विल सी, राइट, विद इन द 7 days start seeing the changes on your body, right, जिसमें आप खाएंगे भी और रिड्यूस भी होगा। और उसके अलावा बिकॉज आप खाना खा रहे हैं, राइट, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं एंड यू enjoying dinner, you not enjoying soup, salad and all, because soup salad सिर्फ हमें फ्रस्ट्रेट करता है, वो हमें पतला नहीं करता है। अगर हम अपनी जर्नी को एक नॉर्मल जर्नी की तरह करेंगे तो वी विल एबल टू रिड्यूस वेट विद ऑल द चार्म ऑन योर फेस। उसके अलावा because and I can see a lot of people asking me a question, right, and I guess it's a 4 to 5 session. So आप लोग क्या कर सकते हैं, go on Google and everybody can search on my name, which is Shikha A Sharma, right, not Shikha Sharma, Shikha A Sharma, right। वहां से आपको मेरा Instagram, Facebook and मेरा Google मिल जाएगा, YouTube मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत, because every day we talking to a channel, news channels and all, और बहुत सारी टिप्स है बच्चों के लिए भी, बिकॉज यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बात नहीं कर पाई अभी तक कि बच्चों के इम्यून्स के लिए क्या करना चाहिए। और उसके अलावा वहां पे आपको बहुत सारी मेरी रेसिपीज मिल जाएगी जो इजी रेसिपी है। जैसे मैं यहीं पे एक शेयर कर देती हूँ, जैसे अब लॉकडाउन है, राइट, एंड हम घर में बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, हमें स्नैक्स खाने का बहुत मन करता है, और तभी माँ बच्चे को बोलती है बेटा जाइए थोड़ी सी भुजिया लेके आइयो, या हस्बैंड वाइफ को बोलता है यार जरा चाय और भुजिया या पकोड़े बना ले। सो ये हमें मोटा करता है, रोटी नहीं करती है, राइट। तो आपको क्या करना है, एक हेल्दी सा क्यूट सा स्नैक बना सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी पापड़ जो आपके घर में पड़ा हुआ है, प्लीज बाहर मत अवॉइड कीजिए, दो लॉकडाउन खुल गया है, बट प्लीज अवॉइड इट। सो जो भी पापड़ आपके घर में पड़ा है उसको आप भून लीजिए, उस पर छोटा छोटा प्याज टमाटर काट के आप डाल दीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्ची डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला डालिए, राइट, और उसपे उबले हुए आप आलू भी चाहे तो डाल सकते हैं, और आपका टेस्टी सा स्नैक्स रेडी हो जाएगा, राइट। और आप उसे जाइए अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ आप एंजॉय कीजिए। और इस चटपटे पापड़ में मैक्सिमम एक पापड़ में जो आपको कैलोरी मिलेगी वो सिर्फ 30 कैलोरी होगी, जो एक ओरियो बिस्किट से भी बहुत ज्यादा कम है, राइट। So this is how you can enjoy your tasty food and you can stay fit, because guys एक बात याद रखिए, एक saying थी an apple keeps the doctor away, but I say it's your fitness which keeps the doctor away। आज जो फीमेल्स को प्रॉब्लम हो रही है, एक बच्चे कंसीविंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे फीमेल 14 बच्चे पैदा कर देती थी, आज एक बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम हो रही है। डायबिटीज, थायराइड इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, और डॉक्टर हमेशा हमें क्या बोलता है, गो एंड रिड्यूस योर वेट। एब्सोल्युटली। तो सबसे बड़ी दवाई है आपकी बॉडी, अगर आप उस पे काम कर लेंगे देन आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और यही हमें कोरोना ने भी सिखाया कि बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, राइट। जितना आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा उतने ही आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, राइट। So for right, so anybody have a question? Shikha, we have multiple questions. किसी ने पूछा एक तो लौंग गरम नहीं करती क्या? And
Somebody is asking me intermittent fasting का क्या बोलेंगी आप, और क्या दही हम खा सकते हैं मील्स में? बहुत बढ़िया, yes. So देखिए, because you know, like I love to answer, right? We live with a few minutes. So guys, बहुत सारे, I'm sure keto diet के लिए भी मैं बताना आप लोगों को चाहूंगी, intermittent के बारे में बताना चाहूंगी, because I deal with celebrities and they talk a lot about keto and intermittent, right? आपके बच्चे follow कर रहे होंगे, तो अगर हम छूट जाते हैं किसी भी टॉपिक पे, go on Google, search my name शिखा A शर्मा, वो आपको मेरे Facebook, Instagram तक गाइड कर देगा, तो वहां पे I have spoken about this, you know, all topics. So guys, मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले गरम की बात, राइट? ये बहुत जरूरी है. गरम ठंडे जैसा कुछ नहीं होता है, ये दवाइयां हैं जो हमें नेचर ने दी है. मुझे बताइए, जब माँ को दूध नहीं आता तो उसको जीरा क्यों देते हैं? जब बच्चे के पेट में दर्द होता है तो उसको हींग या अजवाइन क्यों देते हैं? बिकॉज ये दवाइयां हैं जो नेचर ने आपकी बीमारियां ठीक करने के लिए दी है. ये कोई मसाले नहीं है, ये दवाइयां हैं नेचर की दी हुई, राइट? सो आप अगर लौंग ले रहे हैं तो जब भी ये स्पाइस आपकी बॉडी में जा रहा है, जिस चीज की इसको जरूरत है वो उस चीज पे अप्लाई करेगा. जैसे आप लौंग अगर ले रहे हैं, या रोज आप जो लहसुन लोग खाते हैं, रोज एक कली की लहसुन खाएंगे तो आप कैंसर से भी प्रिवेंट रहेंगे. सो बिल्कुल ये कोई गर्म या ठंडा नहीं है, ये आपकी दवाइयां हैं जो आपकी बॉडी में डाली जा रही है टू क्योर योर हेल्थ इश्यूज, राइट? और बात आई इंटरमिटेंट फास्टिंग की. इंटरमिटेंट फास्टिंग जब वर्ड दिमाग में आता है तो मुझे बहुत हंसी आती है. डाइट जो कहती है 16 घंटा भूखे रहो, 8 घंटा खा लो, राइट? तो मेरा क्वेश्चन है सबसे, क्या कभी आपका बच्चा आपके पास आए और कहे माँ मुझे 16 घंटे तक कुछ खाना मत देना, आप कहोगे सही है या गलत है? तो हम क्यों इन्हें भूल जाते हैं? हम अगर अपने बच्चों को यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग इन आवर लाइफ फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? जो चीजें बच्चों के लिए जरूरत है वो आपके लिए भी है. इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको बहुत तरीके की बीमारियां दे सकती है. जैसे आई कंसल्ट अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, वो लोग उससे लड़ते हैं, यू नो, दे फाइट विद मी कि शिखा तुम मुझे कीटो डाइट दे दो, इंटरमिटेंट दे दे, ये दे दे. बट आई से नो, बिकॉज पतला होना मुश्किल नहीं है. दो तरीके, एक है गुड वेट लूज, एक है बैड वेट लूज. गुड वेट लूज कहता है कि आप रिड्यूस कीजिए विद ऑल द चार्म, विद ऑल द एनर्जी. आज मेरा शेड्यूल इतना बिजी है, मैं कई बार सुबह 5 या 6 बजे तक भी सोती हूँ. उसके बाद यू नो, बिकॉज आई हैव अ डॉटर, देन हमारे सेशंस कंटिन्यूसली चल रहे हैं. आई गेट अप बाय 10 o'clock. अगर ये मैंने बिना खाना खाए हुए किया होता, मैं 1 घंटा कंटिन्यूसली बात नहीं कर सकती, राइट? सो खाना खाना जरूरी है. और बैड लूज क्या करता है? वो सिर्फ आपको एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, आपका हेयर फॉल हो जाता है, आपका फेस का ग्लो चला जाता है, एंड उसके बाद जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं सारा वेट आपका वापसी आ जाता है. सो गाइस प्लीज, और उससे पहले मैं एक बताना चाहूंगी, ये इस बात में सब लोगों को आंसर मिल जाएगा. जब लॉकडाउन नहीं था, Shikha, I'm interrupting you, but we have exactly 2 minutes more, because the kind of information and knowledge you have, we will definitely do another session with you, but we'll have to watch the session, so we just have 2 minutes more. Yeah? Perfect. So, you know, as the 2 minutes is left, right? So guys, what I can just say, so जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ी सी क्विक सी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किसी ने मुझसे, कहीं स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम आपसे पहले जो आया था वो बोल रहा था कि अब ब्रोकली खानी है, एवोकाडो ही खाना है, बिकॉज सारी अब सब्जियों में इंजेक्शंस है, राइट? तो हम आपको माने या उनको माने? तो गाइस, आई लाइक टू टेल एवरीबडी ओनली वन थिंग, ना आप मुझे मानिए ना किसी और को. देखिए कि आपकी ग्रैंड मदर, आपकी दादी माँ, नानी माँ क्या करते थे, बिकॉज वो हमसे ज्यादा फिट थे, हमसे ज्यादा उनमें एनर्जी थी, राइट? तो गो बैक इन योर एशियन टाइम एंड दैट डू दैट थिंग. और अपनी बॉडी को जितना आप सस्ता ट्रीट करेंगे उतने आप महंगे होते चले जाएंगे. So guys, so thank you so much, right? So you know, Vandana ji and Sapna ji, right? So thank you so much. Yes. Perfect. So on this note, मैं सपना पायल, मैं थैंक यू करती हूँ लवीना का जो आपको लेके आई शिखा, and with your wealth, knowledge and information, we will definitely love to have another session of yours, because I can see on the chat box there are umpteen number of questions which are waiting to be answered. but जैसे आपने बताया कि लोग
आपके इंस्टा पे, आपके फेसबुक पे, आपकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू डू दैट, एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट on behalf of Devditi Foundation. Thank you very much. Thank you. Lavina, and Thanks a lot. Thank you so much. Take care. Thank